This is the class of algebraic graph theory for MS mathematics students at Atak campus. I am Dr. Waheed Ahmed Khan. So students, today we are going to discuss further about the graph operations, adjacency list and matrices, antecedent matrices, and then finally we will discuss about the graph's isomorphism. So let us start with the very first operation, which we call it the complement. So keep it in mind that we will take the simple graphs. We will discuss throughout on the simple graphs. So let us suppose that if we have the graph G equal to consist of vertices and edges, then its complement will be equal to G represented by G bar and equal to V as it is an E bar, where E bar are the edges are exactly those edges which are not presented in a graph G. What is going on basically, to take the complement of the graph, you will have to mention the vertices as it is, and then you will have to remove the edges, okay, from the graph G1, okay, which were present in G1, and then add the edges which were absent in a graph G. Let us check with this example. This is the graph G. Here you are seeing that it consists of the 5 vertices and few edges among these vertices. What you will do that to sketch the graph G bar, first of all you have to mention all the vertices V1, V2, V3, V4 and V5. Okay, so there is the vertex, there is the edge between V1 and V2. You have to remove this one. See here that we have removed this one. Okay, there is the edge between V1 and V4. You are seeing here that there is no any edge between V1 and V4. Again there is the edge between V3 and V4, and similarly the in between the other vertices. But you are seeing that we have removed all the edges. And is there any edge between V1 and V3 in this graph? No. So we will insert this one, V1 and V3. Is there any edge between V1 and V3? Now, no, in our graph there is no any edge between V1 and V5. So we will have to insert this one. There is no edge between V2 and V4. So we have to insert this edge V2 and V4. So basically this is the complement of the edges. Possible edges minus the edges lying in between V1 and G, lying in G. Okay, so let us check this one. Is there any edge which has been left? Yes, this one. You are seeing that there is no edge between V3 and V5. You are seeing here. So you have to insert this edge between V3 and V5. So now you are seeing that आप देख रहे हैं कि जी में जहाँ भी वर्टिसेस थे, अब जी बार के अंदर वो कोई एजेस थे, वो कोई एजेस नहीं रहे। अलबत्ता हमने उसके अलावा जो एजेस थे वो स्केच किए हैं, पॉसिबली V1 to V4 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ नोट्स हैं मैंने कुछ स्लाइड्स पे किए हैं फॉर एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी। वी विल कॉल द वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज एन एंड वर्टेक्स लीफ। ओके, तो ये चंद एक ऐसे थे जो टर्मिनोलॉजीज जो एडिशनल मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, विच आर कनेक्टेड टू द आवर प्रीवियस लेक्चर। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज द यूनियन ऑफ टू ग्राफ। यू आर सीइंग हियर दैट इफ वी हैव द ग्राफ, लेट अस सपोज G1 इक्वल टू V1 एंड E1, okay, it's okay, and G2 is the graph, suppose this is V2 and E2, okay, then the union will be, the union of two graph will be equal to the union of the vertices of both the graphs and union of the edges of the both the graphs. ये हम दोनों की एक वर्टिसेस की भी यूनियन कर देंगे, एजेस की भी यूनियन कर देंगे, लेकिन ये बात है याद रखनी है, हमने कोई एक्स्ट्रा एज इसमें नहीं डालना, बस जो एजेस थे वो एज इट इज़, जो वर्टेक्स थे वो एज इट इज़। लुक एट दिस वन, सपोज कि आपके पास एक जी ग्राफ है और एक एच ग्राफ है। इनके सबसे पहले वर्टिसेस आप देखें कि 5 वर्टिसेस इसके पास हैं, ठीक है जी, और 4 वर्टेक्स यहाँ पे हमने वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देने हैं V1, लेकिन अगर वो रिपीटेड होगा विद द सेम एज तो हम उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है जी। V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V7,
ठीक है जी, ये सारे के सारे वर्टेक्स आ गए। अब एजेस पे आप ज़रा देखें, V1 और V3 के दरमियान एज क्या है जी आपका, V1 और V3 के दरमियान E1 एज आ गया आपका, ठीक है जी। और यहाँ भी E1 था आपके पास, V1 और तो इसको हम वन टाइम ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वर्टेक्स आपका V1 और V4 के दरमियान, सॉरी दो वर्टिसेस के दरमियान एज है, तो यहाँ आप देख रहे हैं V1 और V4 के दरमियान ये E2 वर्टेक्स आपका आ गया, ठीक है जी। और दूसरा आप देखें यहाँ पे कि V2 और V3 के दरमियान एज है जी आपके पास कौन सा, E3 एज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो V3 और V2 के दरमियान यहाँ पे देखें जी आपके पास वही एज और वर्टेक्स एज इट इज़ आ गए। सिमिलरली हम आगे चलते जाएंगे, यहाँ पे देखें V1 और V6 के दरमियान एज आ रहा है आपका E6, और V1 और V6 के दरमियान ये आ गया आपके पास E6। इसके बरक्स अगर आप देखें तो दो वर्टेक्स दोनों ग्राफ्स के पास आइसोलेटेड थे, अगर देखें तो ये था आपके पास V5, ये आइसोलेटेड था, V7 ये आइसोलेटेड था। तो ये देख रहे हैं एज इट इज़, हमने कोई एक्स्ट्रा एज यहाँ पे नहीं डालना, दोनों की सिंपल यूनियन कर दी हमने वर्टिसेस की, और जो एजेस जहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे दोनों ग्राफ में हमने एज इट इज़ वहाँ पे डाल दिए हैं। जो एडजेसेंट वर्टिसेस थे वो एडजेसेंट वर्टिस ही हमने डाल दिए। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि V1 और V3 यहाँ पे दोनों में रिपीटेड है, तो इट वंस जिस तरह यूनियन में आप सेट की करते हैं कि वंस वी विल राइट मेंशन दिस वन। ओके, so this was the union of the two graphs. So the next operation is immediate the intersection of two graphs G1. Suppose कि आपके पास ये एक ग्राफ है जो V1 और E1, उसके पास एंटिटीज़ हैं, हाँ जी, वर्टिसेस और एजेस हैं आपके पास, और इसी तरीके से G2 जो है ये V2 और E2 आपके पास इसके एजेस और वर्टिसेस बन जाते हैं। Then the intersection will be the simple. You will have to take the intersection of the two vertices, both intersection of the vertices of the graph and intersection of the edges of the graph, and that's it. इसमें हम एग्जांपल अगर प्रीवियस देखें, जो प्रीवियस स्लाइड पे एग्जांपल हमारे पास थी, अगर इसकी हम इंटरसेक्शन लें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सिंपल दो जो हैं हमारे पास वर्टेक्स V1, दोनों में इंटरसेक्शन है, V3 है यहाँ पे, यहाँ भी V3 है। तो सबसे पहले वर्टिसेस में तो इसके अलावा और कोई भी नहीं है। और फिर ज़रा देखेंगे क्या ये एक ही एलोबरेटेड एजेस के साथ कनेक्टेड हैं, E1 इट्स ओके। सो यू विल टेक द इंटरसेक्शन हेयर, V1 is adjacent to V3 through the edge E1. So intersection is very simple. I think previous example से आपको समझ आ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ये इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ द सम ऑफ टू ग्राफ, कि हम जिस तरीके से नंबर्स को सम करते हैं क्या उसी तरीके से होगा। तो ज़रा देखें कि अगर G है आपके पास वो है V1, E1 और G2 जो है आपके पास ये ग्राफ है, तो जो आपके पास G1 प्लस G2 ये देख रहे हैं आप, ये जो ग्राफ आएगा इसके वर्टिसेस किस तरीके से होंगे, और यहाँ समेशन से मुराद क्या होगा आप देखते हैं यहाँ पे कि वर्टिसेस ऑफ G1 विल बी इक्वल टू द वर्टिसेस ऑफ G1 प्लस G2 एंड एजेस ऑफ G1 प्लस G2 आपके पास ये आ जाए। इन समेशन से मुराद क्या है, ज़रा हम आगे चल के देखते हैं यहाँ एग्जांपल में कि किस तरह हम इनको एडअप करके, ज़रा देखेंगे एक ग्राफ है आपके पास, सपोज उसके वर्टिसेस हैं V1 V2, ठीक है जी, और उसका एज जो है एक ही है E1, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये V3 V4 V5 वर्टिसेस हैं, दे आर जॉइंट थ्रू द एजेस E2 एंड E3, ओके जी, इन दो एजेस से ये कनेक्टेड है, ठीक है जी। इधर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि हम इनको सम आप किस तरह करेंगे। ये आपका हो गया G1 ग्राफ, ये हो गया आपका G2 ग्राफ, ठीक है जी। सबसे पहले समेशन में तो हमने सारे के सारे वर्टेक्स ये ज़रा देख लें, एज इट इज़ लिख देने, मेंशन कर देने, V1 V2 V3 एंड V4 एंड देन V5। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे वर्टेक्स। अब उसके बाद जो एजेस इनको कनेक्ट कर रहे थे, सपोज V1 और V2 के दरमियान एज क्या है, ये आ गया आपका E1 है, V3 और V4 के दरमियान एज ये आ गया आपका E2, V4 और V5 के दरमियान आ गया एज 3, देर से। उसके बाद जो समेशन से मुराद यहाँ पे ली जाएगी कि आप यू हैव टू कंबाइन ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ 1 विद द ग्राफ 2। ये देख रहे हैं आप, ईच वर्टेक्स को आपने कंबाइन कर देना है, ये देखा आपने, ये तो ये एक्स्ट्रा एजेस आपके पास आ जाएंगे, और हासिल होने वाला ग्राफ आपके पास ये आप सामने देख रहे हैं। You have to join each and every vertex of both graphs between to each other, ठीक है जी।
तो ये हो गया आपके पास समेशन ऑफ द ग्राफ्स, आपने देख लिया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ सम, वी कॉल इट अ रिंग सम of two graphs. Suppose we have a graph g1 is this, g2 is this, then the ring sum will be equal to, will consist of the union of two vertices of the two graphs, and then here you have to take the union of the graph of two edges minus or subtracting those edges which are lying in both. यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दोनों में लाई कर रहे हैं, इंटरसेक्टेड है, उनको आपने निकाल देना है, बाकी आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ भी एक ध्यान में रखनी है कि ये जो नीचे मैंने फुट नोट में लिखी हुई चीज़ें, ये एक एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज़ के लिए प्रीवियस स्लाइड पे भी थी, ठीक है ना जी। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मज़ीद भी आपको चाहिए होंगी, प्रीवियस लेक्चर में तो हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा के तौर पर डाली हुई है कि आइंदा फर्दर फोर्थ कमिंग लेक्चर में यू विल बी नीडेड दैट वन। ओके, तो इनको ज़रा रीड कर लेना है आपने आपके पास कि साइज़ ऑफ द ग्राफ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्राफ वर्टिसेस है, साइज़ ऑफ द ग्राफ उसके एजेस हैं, ठीक है जी। अब हम ज़रा चलते हैं इस रिंग सम की एग्जांपल के ऊपर। सपोज़ कि हमारे पास एक ग्राफ, सपोज़ ये जी ग्राफ है आपके पास, ठीक है जी, और G1 है सपोज़ ग्राफ आपके पास, और ये है जी G2 ग्राफ, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है आपने, ज़रा देखें रिंग सम पे, तो वर्टेक्स तो सारे एज इट इज़ एलिब्रेट कर देने हैं आपने, V1 V2 V3 V4 आपने देखा। उसके बाद आप ये देख रहे हैं वो एजेस यहाँ से मैं उठाऊंगा, हाँ जी, जो यहाँ पे नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनको हम कैंसिल करते रहेंगे। ये देख लिया आपने कि V1 और V2 के दरमियान एज है, सॉरी एजेस, तो V1 और V2 के दरमियान जो एज है आपके पास E1 है, ये देख लिया आपने, तो इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। ये देखा आपने, आपके पास V1 है, V2 वर्टेक्स है, लेकिन उस एज को चूँकि दोनों में कॉमन था, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया। दूसरे इस पैराग्राफ पे आए आप, इसके V1 और V3 के दरमियान आप देख रहे हैं कि एक एज है जो कि E2 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ज़रा इस ग्राफ में आए आप देखें कि V1 और V3 के दरमियान कोई एज मौजूद है जी, कोई भी नहीं एज मौजूद, तो ये इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि दोनों की कॉमन में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं है। तो V1 to V3 आपने देखा कि यहाँ पे E2 एज आपके पास आ गया, V1 to V3। नेक्स्ट सर इस पहले ग्राफ पे आप चलें जी, नेक्स्ट पहले ग्राफ पे आप चलें तो V2 to V3 जो है आपके पास एक, इसको देखें ज़रा, एज E3 से कनेक्टेड है। अब ज़रा यहाँ पे आ जाएं आपके V2 और V3 ज़रा देखें, तो यहाँ भी इस ग्राफ के पास आपके पास ये कनेक्टेड है थ्रू E2 डैश, देख रहे हैं आप। तो लेकिन एक चीज़ आप जो नोट करें कि यहाँ पे एज जो है वो E3 है और यहाँ पे एज जो है वो E2 है। सो वी हैव टू स्केच द मल्टीपल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस। ये देख रहे हैं आप, ये, हाँ जी। अगर तो ये यहाँ पे भी आपके पास E3 होता, सपोज एज सेम होता, तो फिर ये यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते, इसको डिलीट कर देते यहाँ से इस ग्राफ में V2 और V3 के दरमियान। लेकिन चूंकि ये डिफरेंट एजेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, वर्टेक्स तो सेम है, लेकिन इस वजह से हमने यहाँ पे ये फिर मल्टीपल एज हमें डालना पड़े। तो इसी तरीके से ये तो ग्राफ हमारा, अब यहाँ पे देखें रे कौन से गए हैं आपके पास, V3 to V4, V3 to V4 को, यहाँ तो V4 वर्टेक्स ही नहीं है, ज़्यादा हम फ्रीली एज इट इज़ इसको छोड़ेंगे। V3 to V4 ये देख रहे हैं आप कि आपको वही एज इट इज़ यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है, ठीक है जी। इसी तरीके से V1 to V4 जो है वो, तो यहाँ पे चूँकि V4 वर्टेक्स ही नहीं है, दोनों के इंटरसेक्शन में हो नहीं सकता, तो ये जो है आपके पास, ये भी आप देखेंगे कि V1 to V4 आपका एज इट इज़ यहाँ पे वर्टेक्स के साथ एज हमने रख दिया है। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे रेंज सम को। तो ये नीचे भी देख लें आपके, ये जो फुट नोट के तौर पे ये एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज़ मैंने डाली हैं, ये आगे चल के काम आएंगी आपको, ठीक है ना जी। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाली हुई है। तो नेक्स्ट वी कम अक्रॉस टू द प्रोडक्ट ऑफ द ग्राफ, यानी दो ग्राफ का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सिंपल प्रोडक्ट इसको कह दें, सिंपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। किस तरीके से हम करेंगे, सपोज़ कि हमारे पास एक ग्राफ है G1 इक्वल टू V1 E1, और V1 जो वर्टिसेस हैं वो आपके पास U1 अप टू UM है, V1 वर्टिसेस,
और इसी तरीके से G2 एक ग्राफ है जिसके वर्टिसेस हैं ये। तो जब हम वर्टिसेस आप G1 क्रॉस G2 करेंगे तो वो तो सिंपल ये हो गया उनके लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने पहला वर्टेक्स यहाँ से उठाया उसके साथ एंड सो ऑन। ये तो आपके पास वर्टेक्स तो बहुत क्लियर है, बिल्कुल इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के तौर पे काम करें। अब बात आ जाएगी एजेस की। एजेस E विल बी द एज बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ किस ग्राफ का, G1 क्रॉस G2 का। वो एज होगा जिसमें कि U1 Vj और U के VL ऑफ G1 होगा इफ़ एंड ओनली है। इसके लिए दो कंडीशंस हैं, ठीक है। यानी कि अब चूंकि G1 क्रॉस G2 जब आप कर चुके होंगे तो आपके पास वर्टेक्स जो आएंगे वो तो इस टाइप के होंगे, सारी बात। ये एक वर्टेक्स होगा, ये दूसरा वर्टेक्स होगा। अब इसके इनके दरमियान एज किस तरह आएगा, किस तरीके से एज कनेक्ट करेंगे, तो इसमें ज़रा देख लें कि अगर तो U1 UI UK के बराबर होगा, इक्वल होंगे। यानी कि U1 इक्वल टू U1, यहाँ भी U1 है, यहाँ भी U1 है, यहाँ U2 है तो यहाँ भी U2 है, ठीक है जी। एक तो ये दोनों जो हैं होंगे इनिशियल वर्टेक्स जो हैं उनको मैं कह देता हूँ पहले वर्टेक्सेस, ठीक है जी, वो अगर इक्वल होंगे। और दूसरी बात यह है कि VJ VL बिलोंग टू EG2, यानी वो एडजेसेंट हों। दूसरे जो वर्टेक्स हैं आपके पास एडजेसेंट आ रहे हैं, ये दोनों एडजेसेंट हों, ये दोनों सेम हों, ठीक है ना जी। तो एजेस आपके दरमियान आपके पास वो आ जाएगा। या फिर ये हो कि ये दोनों पहले ग्राफ में U1 और UK जो UI और UK जो हैं ये आपस में एडजेसेंट हों और J इक्वल टू L, यानी कि ये दोनों वर्टेक्स सेकंड दोनों वर्टेक्स इक्वल आ जाएं तो यूँ एजेस उनको आप कनेक्ट कर देंगे उनको। ज़रा इसमें एक रिमार्क यहाँ पे मैंने डाला है, ज़रा इसको मज़ीद फर्दर एलेबोरेट करने के लिए कि वर्टिसेस आर एडजेसेंट इन G1 क्रॉस G2 इफ़ एंड ओनली है। दो चीज़ें हैं एडजेसेंट के लिए कि U इक्वल टू V हो, ये उसी चीज़ को मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। ये वही चीज़ है जो 1 है यहाँ पे कि U पहला वर्टेक्स इक्वल टू पहले दोनों पहले वर्टेक्स उनके प्रोडक्ट के इक्वल हों, या फिर U डैश इज़ एडजेसेंट टू V डैश इन एज। और सेकंड जो कंडीशन है आपकी यहाँ पे, ये जो सेकंड कंडीशन बन रही है उसको मैंने एलेबोरेट कर दी है यहाँ पे आके। अच्छा, इस रिमार्क का जो सेकंड पोर्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी विल कैलकुलेट इट। G1 G2 क्रॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये ज़रा देखें, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो हो गया जी आपके पास V1 कार्टेशियन विद V2 प्रोडक्ट विद V2। और सेकंड जो एजेस का सेट बन रहा है ये ज़रा देखें, इट इज़ टोटली डिफरेंट नाउ। यू आर सीइंग दिस वन दैट V1 क्रॉस E2 यूनियन V2 क्रॉस E1। कैसे करेंगे इसको, किस तरीके से, तो हम ज़रा देखते हैं जी। यहाँ पे एग्जांपल एक लेते हैं कि लेट G1 बी द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द वर्टिसेस V1 इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ द वर्टिसेस V1 V2, और G1 के जो एजेस हैं हमारे पास वो है एक ही एज जी यहाँ पे E1। और G2 जो ग्राफ है आपके पास इसके हैं 3 वर्टिसेस और एजेस जो हैं इसके 2 हैं। देन देयर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द वर्टिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द प्रोडक्ट ग्राफ विल बी इक्वल टू, वो तो वही है सिंपल। आपने यहाँ से V1 लिया, ठीक है जी, पहले V1 को सेलेक्ट किया और 1 बाय 1 इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ले लिया। V1 विद V3 ये आ गया जी, V1 विद V4 ये आ गया जी, V1 विद V5 ये आ गया जी, ठीक है जी। इसके बाद आप जरा देखें कि सेकंड जो वर्टेक्स है आपका, फिर वो आपने उठाया V2 को, तो V2 विद V3, V2 विद V4, V2 विद V5। अब जरा नेक्स्ट आ जाए आपके पास, ये G1 क्रॉस G के वर्टिसेस आ गए हैं, ठीक है ना जी। तो इसके अलावा एजेस किस तरीके से आप एकमुलेट करेंगे ये देखें ज़रा कि आपने एजेस को किस तरीके से लिखना है। V1 क्रॉस E2 सबसे पहले V1 आपका ये है V1, इसको E2 एजेस आपके पास क्या बन रहे थे ये देख रहे हैं आप, E2 E3। सो 1 बाय 1 उनका कार्टेशियन लें, V1 E2 V1 E3 V2 E2 V2 E3, ये आ गए आपके पास एजेस आ गई। इनके साथ यूनियन करनी है आपने किसकी, V2 क्रॉस E1। अब V2 का 1 बाय 1 E1 आपके पास क्या है जी, ज़रा देखें, सिंपल E कैपिटल E1 जो है सिंपल E1 आता है। तो V3 विद E2 ये देख रहे हैं आप, V3 विद E1 सॉरी, ठीक है जी। फिर V4 विद E1, V5 विद E1। ये तो होगी हमारी कैलकुलेशन।
इसके बाद हम ज़रा देख सकते हैं इसको कि स्केच किस तरीके से किया जाएगा। इन्हीं दोनों ग्राफ को ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि आपका ग्राफ जो है G1 यहाँ पे, ठीक है जी, G1 ग्राफ यहाँ पे और G2 ग्राफ आपका यहाँ पे आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो सबसे पहले तो हमने इनके वर्टिसेस जो निकाले थे, ये देखें कि प्रीवियस स्लाइड पे आप देख लें, उन सब तमाम के तमाम वर्टेक्स को हमने यहाँ पे सबसे पहले एलेबोरेट कर दिया है। ठीक है जी, वो सारे के सारे कितने बन रहे थे जी, 6 वर्टेक्स बन रहे थे। ये आ गया आपके पास 6 वर्टेक्स। ठीक है जी। वो तो जो प्रीवियस स्लाइड पे यहाँ पे हमने वर्टेक्स बनाए हैं, टोटल सेट ये देख रहे हैं आप, वो सारे के सारे हमने वहाँ पे स्केच कर दिए। अब बारी आ जाती है एजेस के ऊपर। ज़रा पहला एज यहाँ पे देखें कि V1 वर्टेक्स है और E2 एज है। क्या है जी, V1 वर्टेक्स E2 है। तो करना क्या है आपने यहाँ पे कि V1 वर्टेक्स जो है आपके E2 एज किस और किस के दरमियान है, V3 और V4 के दरमियान E2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि V3 और V4 को V1 के साथ आपने कंबाइन करना है और एज आपका E2 रहेगा। तो हासिल चीज़ ये आएगी जी, एज ये आ जाएगा आपके पास, देख रहे हैं यहाँ पे ये एज आ जाएगा इसके दरमियान। ठीक, ये वाला एज आ रहा है आपके पास दो वर्टिसेस के दरमियान। इसी तरीके से नेक्स्ट को अगर आप देखें तो नेक्स्ट कौन सा बन रहा था जी आपके पास, ये V1 E3। V1 तो है वर्टेक्स, E3 कहाँ पे लाई कर रहा है, V1 वर्टेक्स ये है आपका। ठीक है जी, E3 कहाँ पे है जी, V4 to V5। तो अब यहाँ पे देखें कि इनके दरमियान V3 और V4 to V5 वर्टेक्स आपके पास ये दोनों आ गए हैं और ये कंबाइंड हो गए हैं विद V1। और एज कौन सा था, E3 था। तो यहाँ पे आप उसको एलोबोरेट कर देंगे, इस एज को इसके दरमियान हमने एलोबोरेट किया है, देख लीजिए। सिमिलरली हम नेक्स्ट जो है देखते हैं कि यहाँ पे V2 E2 है, इन दोनों में एज क्या है, E2 है, वर्टेक्स क्या है, V2 है। तो यहाँ ज़रा देखें आपके वर्टेक्स तो V2 आपके पास आ गया। ठीक है जी, और E2 कहाँ पे आपके एग्जिस्ट कर रहा है, V3 to V4। तो V3 to V4 आपने कंबाइन कर दिया वर्टेक्स V2 को थ्रू द एज E2। सिमिलरली ये भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये पहले तीन जो हैं एजेस जो हैं वो तो बड़ी आसानी, बल्कि 1 2 3 4 एजेस जो हैं 3 4 ये जो एजेस आ गए ये तो बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ज़रा देखें आपके पास V3 E1 बन रहा है। ज़रा प्रीवियस स्लाइड पे चले जाते हैं। ये जो आपका यूनियन का आएगा ना V3 E1, देख रहे हैं यहाँ पे। अब वर्टेक्स क्या है, V3। ठीक है ना जी, V3 वर्टेक्स जो है आपके पास, ज़रा देखिए कहाँ पे लाई करते हैं ये V3 वर्टेक्स है और साथ उसके साथ अगर देखें तो एज कौन सा आ रहा है, E1 आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। लेकिन E1 किस किस वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, V1 और V2 को। तो यहाँ पे देखें आप V1 को V2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, और थ्रू द एज E1, ये कांस्टेंट है अपनी जगह पे। ठीक है ना जी, और रफली स्पीकिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे V1 और V2 किसके साथ कंबाइंड है, E1 के साथ। ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी है आपके पास एज इट इज़ आती जाएगी, ये देखा आपने। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चले जाएं आप। ये जो है आपका एज बना हुआ है, ये बन रहा है V4 E1, यानी V4 तरह देख लीजिए, मेरा फ्री स्पीकिंग आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है जी, और V1 और V2 को किससे ज्वाइन किया गया, एज E1 से, चूँकि यहाँ आप देख रहे हैं कि एज E1 से कनेक्टेड था। सिमिलरली यू विल डू दिस फॉर दिस एज। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे मैंने एजेस जो हैं बाकायदा यहाँ पे भी मेंशन कर दें कि वो एडजेसेंट एजेस जो हैं वो किस तरीके से, एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं, या तो वो एडजेसेंट वर्टिसेस आ रहे हैं, ये बाय डेफिनीशन बेसिकली मैंने मैनिपुलेट किए यहाँ पे। ठीक है जी, कि बाय डेफिनीशन जो था हमारे पास चीज़ तो यही थी कि या I इक्वल टू K होगा। ठीक है ना जी, यानी कि V1 इक्वल टू V1 होगा, तो V3 और V4 से, लेकिन ज्वाइन एजेस में उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ पे देखें एक नोट लिखा है कि फॉर एवरी सिंपल ग्राफ G ऑफ n वर्टिसेस विद m एजेस वी ऑलवेज हैव द नंबर ऑफ एजेस इन बिटवीन 0 to 2 raised to power NC। तो ये याद रखने के लिए ये आगे आप लोगों को काम आएंगे इंशाल्लाह, जब हम ये कंटिन्यू रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर। ओके जी, सो दिस वाज द product of the two graphs.
So we come across to the next operation that we can remove the vertex from the graph. ठीक है जी, हम किसी भी ग्राफ से वर्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब वर्टेक्स को रिमूव करेंगे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे g माइनस वी के साथ। और ये बात याद रखनी है कि वो सब ग्राफ हो जाएगा जो इंड्यूस्ड बाय द वर्टेक्स। ये इंड्यूस्ड सब ग्राफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, द रिमूवल ऑफ द वर्टेक्स वी कॉल दिस ऑपरेशन द रिमूवल। सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ g है और g ग्राफ को जब में से हम एक वर्टेक्स इसका पुल कर देते हैं, पुल आउट कर देते हैं, वो है v4। सपोज जब v4 को करेंगे तो ये एज भी अट जाएंगे, ये सारे के सारे एजेस। ठीक है जी, तो आप देखेंगे सिंपल ये वर्टेक्स बच जाएंगे और along with their edges you are seeing here that we have removed one. Similarly we can add a vertex, हम इसमें कोई ऐड भी कर सकते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे एक जो नोट है आपके पास कि there are at most 2 raised to power nc2 there are at most this possible simple graphs on n vertices। तो ये बातों का जो है उसके हवाले से जर्नल नॉलेज के हवाले से भी काम आ सकता है कि हाउ मेनी possible simple graph we can sketch through the vertex if we are given the vertex n। It's okay जी। नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका वो है एडजेंसी लिस्ट। इससे पहले भी हम इस एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एडजेंसी लिस्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। एडजेंसी लिस्ट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ विद नो मल्टीपल एजेस बाय स्पेसिफाइंग द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू ईच वर्टेक्स। यानी कि एडजेंसी लिस्ट से मुराद हम ये लेते हैं कि सपोज इस एग्जांपल से ज़रा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं हम। सबसे पहले वर्टेक्स ए की, वर्टेक्स ए के जो कौन कौन से यहाँ पे देखें आपके वर्टेक्स आपने मेंशन किए या उनके साथ जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं सिंपल, हम वो इनका आगे चल के इनको यूज़ भी करेंगे हम। अब ए के साथ एडजेसेंट देखें तो कौन कौन से बनते हैं। बी बनता है जी, सी आपका एडजेसेंट होगा और ई होगा। तो बी सी ई एडजेसेंट लिस्ट में, एडजेंसी लिस्ट में उसके आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बी को देखें तो बी के साथ सिंपल एक ए ही वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली सी के साथ कौन कौन से एडजेसेंट है जी, ये आप देख रहे हैं डी और दूसरा सी और एक ए भी है जी। तो ए सी डी आपके ए डी ई सॉरी आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से सॉरी ये ई का था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये ई का था। ई के साथ कौन से ए सी डी आ जाएंगे। दूसरा अगर आप देखें सी के साथ, सी के एडजेंसी लिस्ट में तो वो कौन कौन से आ जाएंगे आएंगे एडजेंसी सी के साथ एडजेसेंट कौन कौन से। एक तो ए है, दूसरा ई है, तीसरा डी है। ये आप देख रहे हैं सॉरी ये सी के साथ। तो सिमिलरली वी कैन देख। अच्छा, इसके साथ ही एक डायरेक्टेड ग्राफ की एडजेंसी लिस्ट भी वर्टिसेस की आपको दी गई है। ज़रा देखें कि ए वर्टेक्स के एडजेसेंट यानी कि ए किस किस का इनिशियल है आपके पास, इसके साथ कौन कौन से इनिशली करना। ए टू बी, इट्स ओके, ए टू बी, ठीक है जी, ये हो गया इसकी एडजेंसी लिस्ट में। ए टू सी, ये भी सी भी उसकी एडजेंसी लिस्ट में आ गया। फिर ए टू डी यानी इनिशियल पॉइंट हो है जिनका, वो है आपके पास, ये भी आ जाते हैं जी। तो टोटल ए की जो एडजेंसी लिस्ट बन जाती है बी सी डी ई बन जाती है। इसी तरीके से बी की अगर देखें आप एडजेंसी लिस्ट तो बी के साथ तो एक इट सेल्फ बी है, ठीक है जी। और दूसरा जो है यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट हो, दूसरा बनता है आपके पास बी टू डी। तो बी और डी सिंपल बनेंगे। इसी तरीके से आप सी की, और इसी तरीके से अगर डी की देखेंगे तो डी में कुछ कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इनिशियल पॉइंट ये हो, इट सेल्फ डी इनिशियल पॉइंट हो और टर्मिनल कोई और आ रहा हो। जो भी टर्मिनल पे आता है वो उसकी आ जाता है एडजेंसी लिस्ट में आ जाएगा डायरेक्टेड ग्राफ की। तो यहाँ मेंशन भी यही किए हुए हैं कि इनिशियल वर्टेक्स जिसका ए है और टर्मिनल वर्टिसेस पे जो जो उसके साथ अटैच्ड हैं वो सारे आप डाल देंगे तो यू विल गेट द एडजेंसी लिस्ट ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, के हम मैट्रिक्स वाइज किस तरीके से किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम इसमें से एडजेंसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। इंसिडेंस मैट्रिक्स भी आगे आएंगी कि किसी भी ग्राफ की एडजेंसी मैट्रिक्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाएगी। सपोज वी हैव अ ग्राफ जी इक्वल टू वी, और ये सिंपल है, पहली बात याद रखनी है। और उसके जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो हैं आपके पास n, ठीक है जी।
तो फिर इनकी एडजेंसी मैट्रिसेस क्या होगी कि हम ये चेक करेंगे कि V1 के साथ एडजेसेंट कौन कौन से वर्टिसेस हैं, V2 के साथ एंड सो ऑन Vn के साथ। और इसकी एंट्री अगर V1 के साथ V2 एडजेसेंट होगा या कोई भी वर्टेक्स वो उसकी मैट्रिक्स में हम उसके नीचे एंट्री 1 रख देंगे, आई जे विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी 0। तो यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज़ द एडजेंसी मैट्रिक ऑफ कंसिस्ट ऑफ। एडजेंसी मैट्रिक की एंट्रीज हम किस तरीके से डालेंगे कि जो भी दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट होंगे अगर तो उनके साथ 1, और जो एडजेसेंट नहीं होंगे नॉन एडजेसेंट होंगे वो 0 आएगा आपके पास। लेकिन अगर ये नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं